पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमार्थ गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति चरण कमले आवाज दाও आवाज অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে তাঁর অহেতুকী কৃপা যাচনা করি। এখন সময়ের সদ উপयोग, समय का सद उपयोग, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम लाइफ स्पैन, এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। মানুষের জীবনে সময় হলো সবথেকে মূল্যবান বস্তু। আমরা সময়ের বিনিময়ে সব কিছু পেতে পারি, কিন্তু সব কিছুর বিনিময়ে সময় পেতে পারি না। এক জায়গায় যাচ্ছিলাম, দেখলাম সন্ধ্যার সময় ঠিক ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় 4 জন লোক তাস খেলছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই কি করছো তোমরা? বলছে টাইম পাস করছি। ভাবলাম ওদের হাতে এত টাইম, অফুরন্ত টাইম সে পাস করছে। কিছু দূর এগিয়ে দেখলাম একটা সিনেমা হলের সামনে লম্বা লাইন, অনেক লোক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিট নেওয়ার জন্য। একজন পরিচিতকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ভাই তুমি এখানে কি করছো লাইনে? বলছে এই সময় কাটানোর জন্য, ঘন্টা 3 সময় কাটবে, সময় কাটানোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি একটা টিকিটের জন্য। আমি মনে মনে ভাবলাম এদের এত অফুরন্ত সময় এদের কাটাতে হচ্ছে, মানে সময় অতিবাহিত করার এদের অজুহাত, মানে সময় কি করে কাটবে তার জন্য তাকে উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে। কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার তার কবিতাতে, কাকাতুয়া কবিতাতে বলছেন, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়, যেজন না বুঝে তারে ধিক শতধিক, বলিছে সোনার ঘড়ি ঠিক ঠিক ঠিক। কবি একদিকে বলছেন সময় নদীর স্রোতের মতো বয়ে যায়, যে সময় একবার চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। আজকে 2024-এর 31 মে 12টার সময়, দুপুর 12টার সময় এই যে পেরিয়ে গেল। জীবনে কোনোদিন এ আর ফিরে আসবে না। 2024-এ শুক্রবার 12:15 দুপুরবেলা কোনোদিন ফিরে আসবে না। সময় একবার গেলে আর ফিরে আসে না। অথচ মানুষ এটা বুঝে না, সময় কাটাতে চায়, সময় পাস করতে চায়। সে তো অফুরন্ত সময় নিয়ে আসেনি, সীমিত অতি পরিমিত সময় নিয়ে এসছে। মানুষ গত জন্মে যা কর্ম করেছে তার যে সংস্কার, কর্মফল, সেই কর্মফলকে ভোগ করার জন্য
যতটুকু সময় দরকার, যত বৎসর সময় দরকার, ঠিক তত বৎসর আয়ু নিয়ে এসে এসছে। 1 মিনিট বেশিও নেই, 1 মিনিট কমও নেই। তাই সবার সময় সীমিত, পরিমিত। এখানে অফুরন্ত সময় কারো হাতে নেই। मनुष्य का जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु समय, लेकिन मनुष्य समय काटने के लिए कहीं ताश खेलता है, कहीं सिनेमा हॉल में जाकर 3 घंटा सिनेमा देखता है, पूछने से बोलता है इस टाइम पास करने के लिए आया हूं, समय काटाने के लिए आया हूं 3 घंटा। अब सोचा जाए उनका हाथ में इतना टाइम है, इतना समय है, अफुरंत टाइम है। कितने टाइम लेकर मनुष्य अपना जीवन में कितना टाइम उनको मिला है। लास्ट जिंदगी में जो कर्म किया है, वो कर्मों का जो फल, जो संस्कार, उस संस्कार को भोगने के लिए उनको जितना ही टाइम जरूरत है, जितना बरस टाइम जरूरत है, उतना बरस ही आयु उसको मिलता है, उतना ही आयु लेकर वो आता है। 1 सेकंड, 1 मिनट ना ज्यादा ना 1 मिनट कम। लेकिन मनुष्य सोचता है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं देता। शास्त्र में कहा गया, मनुष्य जो अपना समय, लिमिटेड समय लेकर आता है, उसको सही उपयोग करना चाहिए। समय যদি সময় মানুষকে সব কিছু দেয়, সময় দিয়ে মানুষ মান, ইজ্জত, ধন, দৌলত, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সদস্য, গাড়ি বাড়ি সমস্ত কিছু পেতে পারে, অর্জন করতে পারে সময় দিয়ে। কিন্তু এই সব মিলে ঘর বাড়ি গাড়ি স্ত্রী পুত্র সমস্ত কিছুর বিনিময়ে তার যে আয়ু রয়েছে, যত আয়ু নিয়ে সে এসছে, 1 মিনিট সে আয়ু বেশি কিনতে পারে না। সময় থাকলে সময় দিয়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, পড়াশোনা করে পাস করে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। কিন্তু যদি 10টাও সার্টিফিকেট হাতে থাকে, ওই आयु 1 मिनटও बढ़ाना যায় না। मनुष्य अपना जिंदगी में हर चीज अर्जन कर सकता है टाइम का विनिमय में। मान, इज्जत, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र आदि, गाड़ी बाड़ी, जो चाहे मनुष्य अपना अर्जन कर सकता है टाइम, अगर उसका टाइम का विनिमय में। लेकिन ये सारे चीज देकर इसका विनिमय में 1 मिनट उसका आयु काल बढ़ा नहीं सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोले, डॉक्टर साहब 50 लाख रुपया आपको दे रहा हूं, मेरा 1 महीना आयु बढ़ा दीजिए। 1 महीना क्या, 10 मिनट आयु बढ़ा दीजिए। संभव नहीं। तो आयुष्काल इतना मनुष्य का जिंदगी में इतना वैल्यूएबल है, उसको हम लोग मूल्यांकन नहीं देते, उसको मूल्य नहीं देते हैं। शास्त्र में कहा गया ये आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रतम तो सर्वभगतम तस्य अर्धस्य परसचर्तार्थम अपरम बाल्यत्व वृद्धत्वम अवशेषम रोग वियोग दुख सहितम कुतो सुखम प्राणी नाम। बोलছে মানুষ
মোটামুটি 100 বছর আয়ু নিয়ে আসে। তার মধ্যে পরিমিত ফিক্সড, তার মধ্যে রাতেও অর্ধরাত মানে রাত্রে ঘুমিয়ে আধা কাটিয়ে দেয়। বাকি যা বাঁচলো তার অর্ধেকের অর্ধেক অপরের মনোরঞ্জন করতে, অপরের সাথে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে রক্ষা করতে কেটে যায়। তার অর্ধেক বাল্যকাল এবং বৃদ্ধাবস্থাতে কেটে যায়। অবশেষ যতটুকু থাকে সেটা রোগ, বিয়োগ, ব্যথা, দুঃখ সহ্য করতেই কেটে যায়। তো মানুষের জীবনে সুখ কোথায়? প্রাণীদের জীবনের সুখ কোথায়? শাস্ত্রকে বলছে কিন্তু মানুষ এই পরিমিত আয়ু নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করে। যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার পরে সিস্টেম বানালেন যে যখন কোনো কিছু জয় করব, কোনো দেশ বা কিছু জয় করব, তখন ভীম একটা ঘন্টা মারে। তো একটা ঘন্টার আওয়াজ শুনলে প্রজারা বুঝতে পারবে যে রাজা কোনো না কিছু একটা জয় করেছে। যদি 2 ঘন্টা বাজে তাহলে 2 জয় লাভ করেছে। তো একদিন রাজ দরবারে যুধিষ্ঠিরের কাছে এক ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চাইল। যুধিষ্ঠির বললেন, আজকে আমি খুব ব্যস্ত, তুমি কালকে আসো, কালকে এই সময় আসবে, তোমাকে দেব কিছু। ভীম দাঁড়িয়েছিল, শুনে ভিক্ষুক তো চলে গেল, ভীম ঘন্টা বাজাতেই থাকছে, ডং 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 ডং। সবাই আশ্চর্য, কিসের এত জয়, কি এত জয় লাভ করলো যুধিষ্ঠির যে ঘন্টা থামে না। যুধিষ্ঠিরও নিজে বুঝতে পারছে না। ভীমকে ডেকে বলছে, ভীম কি হলো, তুমি যে ঘন্টা বাজিয়েই চলেছ? বলে, দাদা, মানুষ রাজ্য জয় করে, মানুষ অন্যান্য কিছু জয় করে, তখন একটা ঘন্টা বাজাই। কিন্তু আপনি যে এই ভিখারিকে কালকে আসতে বললেন, মানে আজ এখন থেকে কাল এই 12টা পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন, মানে গ্যারেন্টি, মানে এই সময়কে আপনি জয় করতে পেরেছেন। যে সময় মানুষ জয় করতে পারে না, সেই সময়টা আপনি জয় করেছেন, এইটাই সব থেকে বড় জয়, তাই আমি ঘন্টা বাজিয়ে চলেছি। বলার তাৎপর্য হলো, সময়কে কেউ জয় করতে পারে না। युधिष्ठिर राजा बनने के बाद सिस्टम बनाए जे मेरा जो आनंद वो हमारा प्रजा भी उसको शेयर, प्रजा लोगों को भी शेयर करना चाहिए। तो मैं कोई चीज जब अपना युद्ध में जयलाभ करूंगा, ये जयलाभ करने का जो आनंद है प्रजा को भी उसको लाभान्वित होना चाहिए। तो सिस्टम बनाए, एक कहीं जय कोई देश जय करेंगे तो 1 घंटी बजेगा, बहुत बड़ा घंटी। तो घंटी का आवाज सुनकर सब सोचेंगे आज मेरा राजा, हम लोग का राजा कोई एक जय किए, कोई एक देश जय किए। तो ऐसे ही सिस्टम था। एक दिन राज दरबार में भिखारी, एक भिक्षुक आए, राजा युधिष्ठिर को कुछ भिक्षा मांगे। युधिष्ठिर राजकार्य में बिजी थे। वो बोले, देखो आज तो मैं बहुत बिजी हूं, तुम काल इसी वक्त आना, तुम्हें कुछ दूंगा। भीम बगल में खड़े थे। भीम सुनते भिखारी तो चले गए, भीम सुनकर घंटी बजाने लगे, डंग 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 डंग। सब आश्चर्यचकित हो गए, बात क्या है? राजा कौन सा इतना बड़ा जय किए जी घंटी थम ही नहीं रहा है, घंटी बाज रहा है। युधिष्ठिर को भी समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर बुलाए भीम को, भीम क्यों तुम बजाते जा रहे हो उसको? बोले, दादा ये जो जय है आपका, ये सबसे बड़ा जय है जो आप टाइम को जय कर लिए। क्योंकि भिखारी को बोले काल तुम आना, मतलब अभी से काल तक आप जिंदा रहेंगे
ये गारंटी आपको मिल गया है, मतलब टाइम को आप जय कर लिए, इससे बड़ा जय क्या हो सकता है। इसलिए मैं घंटी बजाते जा रहा। कहने का मतलब है टाइम को कोई जय नहीं कर सकता। हम लोग टाइम से बंधे हुए हैं, टाइम मुताबिक हमको चलना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जो है समझता नहीं है, टाइम का बहुत दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता है। मनुष्य अपना जिंदगी में सबका 3 चीज करने में बहुत आनंद मिलता है। टायर्ड नहीं होते, परिश्रांत नहीं होते। कोई काम धाम करता है तो आदमी टायर्ड हो जाता है, लेकिन आदमी को जब आत्मा प्रशंसा कोई करता है, प्रशंसा कितना भी दिन रात सुनते रहेगा, लेकिन कभी टायर्डनेस नहीं फील करता है, कभी परिश्रांत नहीं होते। 1 नंबर। 2 नंबर में परनिंदा और परचर्चा कराते वो मनुष्य टायर्डनेस आसे ना, घंटा पर घंटा काटिए जाए, आनंद पाए। राजा अकबर का, सम्राट अकबर का दरबार में बहुत दरबारी लोग थे, उसमें बीरबल भी था। अकबर बोले चलो तुम लोग प्रशंसा करो। सब कोई बोलते राजा आप बहुत महान है, तो राजा खुश होकर एक मोती का हार दे देते हैं। कोई बोलते राजा बादशाह आपसे, आप सबसे दुनिया में बड़े हैं, कोई दे देता है ऐसा। बीरबल चुपचाप है, बीरबल कुछ नहीं बोल रहा था। तो अकबर बोले बीरबल तुम क्यों चुप हो, तुम कुछ बोलो। बीरबल बोले जहां पना मैं क्या बोलूं, आप तो खुदा से भी बड़े हैं। तो अकबर बोले थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा प्रशंसा हो रहा है। बोले नहीं यहां पना, आप खुदा से भी बड़े हैं। कैसे? बोले खुदा जो काम नहीं कर सकते हैं आप वही काम, आप वो काम कर सकते हैं। कैसे? खुदा किसी को घृणा कर कर अपना राजत्व से बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज तो खुदा में है। खुदा का दिल में हर चीज है। खुदा किसी को बाहर करेंगे तो कहां बाहर करेंगे, लेकिन आप ये चीज कर सकते हैं। किसी का ऊपर गुस्सा हो गए, किसी का ऊपर आप विरक्त होकर उसको पनिशमेंट देकर अपना राजस्व, अपना जो राज्य है उसे विताड़ित कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जो खुदा नहीं कर सकता है। अकबर बहुत खुश हो गए। सबको एक एक मोती का हार देते थे, उनको 2 मोती का हार दे दिया बीरबल को। वाह वाह वाह, क्या को आत्म प्रशंसा, নিজের প্রশংসা শোনার জন্য মানুষ কোনোদিন টায়ার্ড হয় না, কোনোদিন পরিশ্রান্ত হয় না। দিন রাত কেউ প্রশংসা করতে থাকুক, শুনতে থাকুক। 2 নম্বর পিএনপিসি মানে পরনিন্দা পরচর্চা করা। পরনিন্দা পরচর্চা করতে দিনের পর দিন রাতের পর রাত করতে থাকবে, তার আর কোনো টায়ার্ডনেস হয় না। আর সেই পরনিন্দা পরচর্চাতে আমরা আবার ভগবানকেও সামিল করি। গাচ্ছে জয় জগদীশ হরে, ওম জয় জগদীশ হরে, আমার ধন সম্পত্তি যেন আরো 10 গুণ বাড়ে, ওম জয় জগদীশ হরে। নিজের বাড়লো তো ঠিকই আছে, ওম জয় জগদীশ হরে, ওম জয় জগদীশ হরে। এ প্রতিবেশীরা যেন আপোষে লড়াই করে মরে, ওম জয় জগদীশ হরে। দেখুন, নিজে উন্নতি চাইলো ঠিকই, অপরের ক্ষতি চাইছে, তাকে ভগবানকে শরীক বানাচ্ছে। হে জগদীশ, তুমি যেন আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো, প্রতিবেশীরা যেন লড়াই করে মরে। জগদীশ হরে, অযথা সময় নষ্ট করছে। और एक चीज में आदमी कभी थकता नहीं है, वो है क्या? किसी का उन्नति वो देख नहीं सकता, ईर्ष्या। कैसे उसको
लेग पुलिंग करे, कैसे उसको नीचे गिरावे, इसमें सारे एनर्जी लगा देता है लेकिन कभी थकता नहीं। दूसरा का भलाई অপরের ভালো সহ্য করতে পারে না, অপরের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, ঈর্ষা। কি করে ওকে ডাউন করা যায় তাতেও ব্যস্ত থাকে। একবার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে কাঁকড়া প্রতিযোগিতা, ক্র্যাব কাঁকড়া का প্রতিযোগিতা হবে ডিক্লেয়ার করলো। বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁকড়া গেল, ক্র্যাব ক্র্যাব কাঁকড়া, ক্যাঁকড়া ক্যাঁকড়া जापान থেকে এলো, फिलीपींस থেকে এলো, इंडिया से भी गया। सब अपना रखा एक जगह पर, सुबह अपना प्रतियोगिता शुरू होगा। तो जापान जो अपना ड्रम में कैंकड़ा लाया था उसको ढांकना बंद कर रखा है क्योंकि उठकर भाग जाएगा। फिलीपींस वाले भी ढांकना बंद कर रखा है। लागोस से आया था वो भी ढांकना बंद करके रखा है क्योंकि भाग जाएगा। इंडियन जो आदमी जो था, जो ले गया था, उसको ढांकना खुला है। उसको बोलता है, अरे बुड़बक, तुम इंडिया इतना दूर से पैसा खर्चा कर लाया, अब प्रतियोगिता काल सुबह होगा, अब रात में तो सब उठकर भाग जाएगा, तो तुम क्या कंपटीशन में कैसे भाग लोगे? तो बोले नहीं, हमारा एक कैंकड़ा जो है इतना ट्रेंड है, कोई भाग नहीं पाए, कोई भागेगा नहीं। रात भर खुला ही छोड़ दिया उसका ढांकन ड्रम में। सुबह उठकर सब देखा, जितना कांकड़ा था वहीं पर है, एक भी भागा नहीं। कंपटीशन में उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। वाह वाह, तुम कांकड़ा को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, इतना डिसिप्लिन बनाया है, एक भी भाग नहीं पाया, एक भी भागा नहीं, रात भर चुपचाप रहा हुआ। क्या ट्रेनिंग दिया बताओ, सीक्रेट क्या है? वो बोलता है इंडियन, बोले ना, এদেরকে ট্রেনিং দিতে হয়নি, আমরা কি করি ওইটা দেখে দেখে এরা শিখেছে। তাই এক কাঁকড়া ড্রামে উঠলে আরেক কাঁকড়া লেগ পুল করে দেয়, আরেকটা উঠলে আরেকটা লেগ পুল করে দেয়। তো সারা রাত ধরে এরকম চলেছে কিন্তু একটাও বাইরে বেরোতে পারেনি। তো সিক্রেসি বলছে আমরা ভারতবাসী, আমরা যা করি ওইটা দেখে দেখে কাঁকড়াগুলো শিখেছে, তো একটা ক্যাঁকড়াও বাইরে বেরোতে পারল না। মানে মানুষের স্বভাব লেগ পুল করবে, নিচে 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 ওকে ফেলবে, উন্নতি উপরে কেউ উঠুক এটা চায় না। এইভাবে অযথা মানুষ এই যে সময়, অতি মূল্যবান যে সময়, অতি মূল্যবান সময়ে সে ব্যয় করে কাটিয়ে দেয়। किंतु शास्त्र में कहा गया युक्त आहारो विहारोस्व युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त निद्रा अवबोधस्व योगो भवति दुःखहा। माने মানুষের যে জীবন সেটাকে ভাগ করে দিয়েছে যে কতটুকু তুমি কিসের জন্য লাগাবে। এখন জীবনের পরিমিত তো এত, তাই এক একটা দিনকে ভাগ করে শাস্ত্রতে বলেছে যুক্ত আহার ও বিহারস্য, মানে এই যে 24 ঘন্টা, এই 24 ঘন্টার 6 ঘন্টা তুমি আহার বিহার, তোমার খাওয়া, মনোরঞ্জন, টিভি দেখা, শপিং এ যাওয়া, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, আমোদ প্রমোদ করা, এগুলোর জন্য 6 ঘন্টা। আর যুক্ত চেষ্টস্ব কর্মসু, কর্মের জন্য, জীবিকা অর্জনের জন্য, চাকরি করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা, পশুপালন করা, কৃষিকার্য করা, এর জন্য 6 ঘন্টা। 12 ঘন্টা হলো। নিদ্রা অববোধস্য, নিদ্রার জন্য 6 ঘন্টা। আর অববোধস্য মানে নিদ্রার মোহ জাগরণের জন্য, অর্থাৎ সাধনার জন্য, সৎসঙ্গ করার জন্য, সাধনার জন্য, পরমার্থ লাভের জন্য 6 ঘন্টা। এই করে ভাগ করা রয়েছে। কিন্তু
तो शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में कहा गया युक्त आहार विहारोस्व, आहार विहार मनोरंजन करने के लिए 24 घंटा में 6 घंटा तुम व्यतीत करो, बाकी 6 घंटा तुम्हारा उपार्जन करने के लिए, आर्थिक उपार्जन करने के लिए, संसार चलाने के लिए तो अर्थ का जरूरत पड़ता है। अर्थ उपार्जन करने के लिए व्यापार करो, व्यवसाय करो या कृषि कार्य करो या नौकरी करो, तो उसके लिए 6 घंटा तुम दो, 12 घंटा। बाकी 6 घंटा, बाकी 12 घंटा में 6 घंटा निद्रा में, निद्रा तो जरूरी है, बिना निद्रा तो आदमी रह नहीं सकता है। निद्रा में बाकी 6 घंटा दो और 6 घंटा अवबोधस्व, माने बाकी 6 घंटा তুমি তোমার কিসের জন্য কাজে লাগাও? মোহনিদ্রা ভঙ্গের জন্য, সৎসঙ্গের জন্য, সাধনার জন্য, পরমার্থ লাভের জন্য, ধর্ম এবং মোক্ষ লাভের জন্য, মোক্ষের পথে চলার জন্য 6 ঘন্টা। কিন্তু মানুষ তা করে না, শাস্ত্রের বিধিন মানুষ মানে না, আহার বিহারেই কাটিয়ে দেয় সমস্ত সময়। সাধনা করতে সাধনা করার সময়ও যে 6 ঘন্টা যে সাধনাতে দেবে, সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত্রে করে যে দেবে তাও করে না। সাধনা করতে বসে পাশে মোবাইলটা রাখে, সাধনা করছে পাশে মোবাইলটা, বেশি দূর যেন হাত বাড়াতে না হয়, কাছেই রাখে। মনে হয় এই মোবাইলে ভগবান মেসেজ পাঠাবে হোয়াটসঅ্যাপে, আমি কখন আসছি, তুমি তৈরি থাকো, আমাকে দর্শন পাবে, তাই যেন মোবাইলে মেসেজ পাঠাবে। এই জন্য মনে হয় মোবাইলটা কাছে রাখে। সাধনা করছে, মোবাইলে একটু মেসেজের ক্রিম হলো, খুলে দেখলো তোমার বাবা রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে হসপিটালে ভর্তি হয়ে রয়েছে, আর সাধনা হলো না, দৌড়লো কাঁদতে কাঁদতে হসপিটাল। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ হলো বাড়ি থেকে, তোমার মেয়ে কোন এক ছেলের সাথে পালিয়েছে, সাধনা শেষ। মানে বহির্মুখী সাধনা যে 6 ঘন্টা নিয়ে যে অন্তর্মুখী হবে তাতেও নেই, সে বহির্মুখী হওয়ার জন্য নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। ওই মোবাইলে যখন 4:30টার সময় অ্যালার্ম দিয়ে রাখে যে 4:30টায় উঠতে হবে, গুরু সকাশ করতে হবে, পাঞ্চজন্য করতে হবে 5টার সময়, 4:30টা যখন মোবাইল বাজছে তখন হাতটা দিয়ে মোবাইলটা বন্ধ করে দেয়, মানে অ্যালার্মটা বন্ধ করে দেয়। তখন কিন্তু সাধনা করছে, মোবাইলটা খোলা রেখেছে, মোবাইলটা দেখছে। এক জায়গায় আমি দেখলাম প্রণাম করছে, প্রণাম করতে করতে কোন মেসেজ টুংটাং আওয়াজ হলো, বাম হাতে মোবাইলটা নিয়ে দেখছে, প্রণাম করছে মোবাইলটা নিয়ে। আরে মানুষ মহামূর্খ, এইসব করার জন্য তোমাকে তো টাইম দেওয়া হয়েছে 6 ঘন্টা 18 ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে, আর এটার জন্য তো তোমাকে মাত্র 6 ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে, তুমি এই পুরো টাইমটা ওইদিকে লাগাচ্ছ। मनुष्य का जीवन में जो टाइम को बांटा दिया, ये देखो तुम्हारा हाथ में, तुम लिमिटेड परिमित आयु लेकर तुम आए हो, इसमें तुम्हारा परमार्थ के लिए, तुम्हारा मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, धर्म के लिए तुमको टाइम ज्यादा देना है। और तुम्हारा अर्थ और काम, इसके लिए प्रारब्ध को ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा जो संस्कार है उसका ऊपर छोड़ दो, उसके लिए तुमको ज्यादा टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है। कर्मफल में जो लिखा हुआ है वैसे ही होगा, जितना आने का है अर्थ उतना ही आएगा, जो तुमको मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने का नहीं है। वो कर्मफल का ऊपर छोड़ो, प्रारब्ध का ऊपर छोड़ो, लेकिन तुमको टाइम कहाँ देना है? टाइम देना है धर्म का ऊपर, मोक्ष का ऊपर, इस पथ पर चलने के लिए टाइम देना है। लेकिन आदमी करता है उल्टा, इसका बिल्कुल टाइम ना देकर जो 6 घंटा जो है वो भी अपना दुनियादारी में बिताता है। थोड़ा बहुत पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए बैठता है, वो भी मोबाइल को इस्तेमाल करता है। अभी ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए मोबाइल में अलार्म बाज रहा है, उठने के लिए उसको बंद कर देता है, फिर सोता है, ब्रह्म मुहूर्त भी बिता देता है।
और उधर जब साधना करता है वो अपना मोबाइल लेकर, आधा माइंड तो मोबाइल में जाता है। लेकिन साधना मनोसंयोग, लेजर लाइक फोकस, लेजर लाइक फोकस करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे सांप जो है ना, कभी कोई उसका शिकार देखता है ना, उसको इतना कॉन्सेंट्रेटेड कर कर वो अपना देखता है शिकार को पकड़ने के लिए, लेजर लाइक फोकसिंग करता है, इधर उधर नहीं। फिर उसको अपना ऐसा बना लेता है कोना को, ताकि बाहर से कोई किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो ऐसा करके सांप रहता है। तो हमें उससे सीखना चाहिए। जब हम साधना करेंगे, हमारा फोकसिंग साधना में लेजर लाइक फोकसिंग होगा, और होल्ड ऑन, और वो फोकसिंग का ऊपर होल्ड करना चाहिए। होल्ड ऑन मतलब फोकसिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, ना इधर उधर। और जैसे बाहर से किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, सांप जैसा करके रखता है, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, तो ऐसे ही मन को भी हमको बाहर जगत से मन को विड्रॉ कर मन को एकाग्र करके रखना है, ताकि हम साधना पथ पर ठीक से चलें। लेकिन साधना तो मनुष्य करता है उल्टा, साधना में डिस्टर्बेंस आता है, तो साधना कहाँ से होगी भाई। इसलिए हम जब साधना करेंगे, আমি যখন সাধনা করব, তাতে যেন আমার লেজার লাইক ফোকাসিং থাকে, লেজার লাইক ফোকাসিং এবং হোল্ড অন দ্যাট ফোকাসিং, এবং সেই ফোকাসিং এর উপরে হোল্ড অন করে রাখতে হবে, কন্টিনিউ করতে হবে সেই কনসেন্ট্রেশনকে, এবং বাহার থেকে বাইরে থেকে যাতে কোনো প্রকার ডিস্টারবেন্স, কোনো প্রকার এলিমেন্ট ডিস্টার্ব না করে, তার জন্য মনকে একাগ্র করে, তার বাইরের থেকে মনকে উইথড্র করে পিন পয়েন্টেড করে আমাকে যেতে হবে, তবেই না সাধনা হবে। তো বাবা আমাদের করুণানিধি বাবা, দেখলেন এই যে 6 ঘন্টাও মানুষ ঠিক মতো দেয় না সাধনাতে, কিন্তু তার এই মোক্ষের পথে চলার জন্য, ধর্মের পথে চলার জন্য, পরমার্থ লাভের জন্য যতটুকু এনার্জি দরকার, যতটুকু সময় দেওয়া দরকার, যতটুকু মন দেওয়া দরকার, মানসিক শক্তি দেওয়া দরকার, মানুষ তো দিচ্ছে না। তাই বাবা খুব সহজ সরল ভাবে আমাদের ডেইলি রুটিন বানিয়ে দিলেন, যাতে 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা আমরা যাতে সাধনাতে লাগাই। 4:30টায় উঠতে হবে, গুরু সকাশ করলাম, উঠে গুরু সকাশ করলাম, শুরু হলো আমার দিনচর্যা সাধনা, মানে ব্রহ্ম ভাবনা নিয়ে গুরু সকাশ। পঞ্চজন্য এলো, সেখানেও কীর্তন করে পঞ্চজন্য, সেখানেও সাধনা। তারপরে স্নান টান করে সকালবেলা সাধনা করব। যখন স্নান করতে যাচ্ছি, স্নান করার পরে ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্ন ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা, পার্ট অফ সাধনা, এটাও সাধনা হলো। তারপরে যখন সাধনা করছি, সেটা তো সাধনা হলোই। খেতে যাচ্ছি, সেকেন্ড লেসন নিয়ে ব্রহ্ম ভাবনা নিচ্ছি, যে ব্রহ্মরূপী আমি ব্রহ্মরূপী অন্নকে খাচ্ছি, সেটাও সাধনা। কোথাও যাচ্ছি, বাইরে যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে সেকেন্ড লেসন নিয়ে ব্রহ্ম ভাবনা নিচ্ছি, ব্রহ্মের বিচরণ করতে যাচ্ছে, তখন সেই যে আমার বিচরণটা, সেটাও ব্রহ্ম সাধনা। শুতে যাচ্ছি, শুতে যাওয়ার আগে বেড সাধনা করছি, সাধনা করি ঘুমোতে যাচ্ছি, সাধনা। তো সাধনা করে যখন আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, ঘুমালাম, এবং তারপরে যখন ভোরবেলা যখন নিদ্রা খুললো, চোখ যখন খুললাম, আবার গুরু সকাশ করলাম। বাবা এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যে মানুষ, তোমাকে তো জবরদস্তি করলে তো তুমি তো করবে না, সাধনা করবে না। তাই তোমার সময়টাকে এমনভাবে ছকে বাবা বেঁধে দিলেন, করুণাময় ব্রহ্ম, যে মানুষ তুমি সব কাজ করবে, আহার বিহারও করবে, তুমি চেষ্টস্ব কর্মসুও করবে, তুমি নিদ্রাও যাবে, কিন্তু সবকিছুর ভিতরে তোমার এই অববোধনের জন্য, সবকিছুর ভিতরে তোমার এই আধ্যাত্মিক ভাবনা যেন থাকে, সবকিছু যেন এই কি বলবে আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরম পুরুষের ভাবনাটা যেন থাকে। বাবা
हम लोग का लाइफ में कितना करुणामय बाबा। ये जो हम बोले पहले, मनुष्य ऐसे ही टाइम बिताता है अଯথा इधर उधर, साधना में उतना टाइम देता नहीं है। इसलिए बाबा दिनचर्या हम लोग का बना दिए कितना बहुत सरल में। तुम तुम्हारा जब निद्रा खुलेगी, नींद से जब तुम उठोगे, निद्रा भंग होने का साथ साथ तुम आंख बंद कर गुरु सकाश करो, मतलब उनको याद करो जो तुम्हें प्राण शक्ति दिए हैं, जिनका इच्छा से तुम चल रहे हो। ये जो मेरा श्वास प्रश्वास, ये जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, मेरा अपना इच्छा से क्या, मैं चाहूं इसको आधा घंटा रोक सकता हूं क्या? श्वास प्रश्वास अगर मैं आधा घंटा रोक दूं, बोलो हरि हरि बोल, राम नाम सत्य हो जाएगा। मेरा इच्छा से नहीं चल रहा है। ये धड़कन मातृगर्भ से शुरू हुआ, हार्ट बीटिंग चल रहा है, अनवरत चलते रहेगा। जिस दिन जिस मुहूर्त में ये बंद हो जाएगा, राम नाम सत्य है हो जाएगा। मेरा इच्छा से धड़कन नहीं चल रहा, उन्हीं का इच्छा से। हम जो खाना खाते हैं, उस खाना से जो खून बनता है, वो ये जो मशीन बनाए हैं, कौन बनाए हैं? ये मशीन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक मशीन दुनिया में कहीं नहीं है। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन आज तक विज्ञान का प्रयुक्ति विद्या या विज्ञान का ज्ञान, ऐसा कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी आविष्कार नहीं कर पाया जो कि खाना से खून बनेगा। कहीं नहीं है, यही मशीन है परमात्मा का बनाया हुआ। हम दाल भात सब्जी खाते हैं, खून बनता है, ब्लड बनता है, रक्त मांस बनता है, शरीर अपना चलता है। खून बनना बंद हो जाए, राम नाम सत्य है। तो ये मेरा शरीर जो उन्हीं का इच्छा से चल रहा है, मेरा धड़कन की आवाज उन्हीं का इच्छा से चल रहा है, मेरा श्वास प्रश्वास की गति उन्हीं की आवाज से चल रही है। उनका हाथ में हाथ। इसीलिए वो जो परमात्मा बाबा देखे कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो इसको मिला, ये तो ऐसे ही साधना करेगा नहीं, इसलिए उसका दिनचर्या इतना छक में बांध दूं ताकि हर वक्त हर चीज करने वक्त उसको साधना हो। खाना खाएगा, खाना खाने बैठता है तो सेकंड लेसन लेता है, ब्रह्म भावना लेता है। खाना खा रहा है, दिस इट बिकम्स ऑल्सो योर ब्रह्म साधना। कहीं जा रहा है बाहर, दरजा का सामने में खड़ा होकर अपना सेकंड लेसन लेकर अपना भगटा लेता है, ब्रह्म जहां जा रहा है ब्रह्म में विचरण करने जा रहा है। द ट्रैवलिंग, हमारा मूवमेंट, हमारा जहां पर हम अपना घूमेंगे वो क्या, दैट बिकम ऑल्सो माई साधना, ब्रह्म साधना। हम नहाने जा रहे हैं, नहा लिए, फिर वहां पर नहाने का बाद हम लोग जो करते हैं क्या, जो अपना मंत्र बोलते हैं ना, स्नान मंत्र मुद्रा, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म होबी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, वो क्या है, ब्रह्म भावना लेना। साधना करने बैठते हैं, साधना करते हैं, खाना खाते हैं, उन्हीं का भावना लेते हैं। सोने जाते हैं, सोने का पहले बेड साधना करके उनका भावना लेकर हम सोते हैं। देखिए 24 घंटा, शास्त्र बोला कि 6 घंटा तुमको देना है, मनुष्य तो 6 घंटा देता नहीं है। बाबा ने हमारा जो कल्याण मय बाबा, करुणानिधि बाबा हमारा लाइफ को ऐसा बना दिया है, 24 घंटा तुम अवबोधन के लिए, 24 घंटा तुम अपना धर्म परमार्थ अर्जन करने के लिए, 24 घंटा तुम अपना क्या नाम मुक्ति और मोक्ष धर्म के लिए पथ पर चलने के लिए तुम बैठ करो। लेकिन किसी कोई फीलिंग नहीं होगा, हर काम करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन उसका साथ साथ हमारा धर्म साधना हो रहा है। ऐसे ही कहावत है ये, अरे आप धर्म साधना किया, जब बूढ़ेस काल आएगा तब ना करेंगे। अरे बूढ़ेस काल आएगा तो ये तो व्याधि मंदिर हो जाएगा शरीर, तब तो साधना करने का कहाँ मौका मिलेगा। इसलिए 55 के लिए अपेक्षा नहीं करना है,
बचपन से ही शुरू करना है धर्म का पथ पर चलने के लिए। बचपन मेरे जिंदगी में आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बचपन से शुरू करो। बाबा ने सिस्टम दिया है, कौमाराचर प्राज्ञ धर्मन भगवतानी और दुर्लभम अनुसुजन मतदत्तम ध्रुवमर्थदम। शुरू करो, बचपन से शुरू करो साधना। 5 साल हो जाता है, बाबा सिस्टम बना दिए है, 5 साल जो हो गया उसको नाम मंत्र में दीक्षा दे दो, चलना शुरू हो उसका लाइफ धर्म का पथ पर। कब तक चलेगा? जब तक वो जिंदा रहे तब तक चलेगा। मरने का बाद भी श्मशान में ले जाने का पहले भी बोलता है तुम्हार जिनिस तुम्हारे दिलाम। वो डेड बॉडी को भी समर्पण किया जा रहा है। जिनको तुम भेजा था संसार में दुनिया में वो अभी छोड़कर, इसलिए तुम्हारा जिनिस तुम्हारे दिलाम, तुम्ही नाव प्रभु कोले तुले। जिंदगी का हर पल, जिंदगी का हर वक्त, हर मुहूर्त जो है उनके लिए समर्पित है, परमात्मा का भावना में भावित है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया कब साधना करना है, बोलता है जावत स्वस्थ इदम कलेबरम। ये कलेबर যতক্ষণ সুস্থ থাকে, যাবৎ চ দূরে জরা, জরা ব্যাধি বৃদ্ধাবস্থা যতদিন না আসছে। বৃদ্ধাবস্থা এসে গেলে তখন তো দাঁত পড়ে যাবে। রাম রাম বলো বললে বলবে আম আম বলবে, রামও বলতে পারবে না, দাঁত পড়ে গেছে, আম 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 বলবে। আম বললে তার মুক্তিমুখ হবে? হবে না। তাকে তো সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। তাই বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নয়, তাই বলছি যাবৎ চ দূরে জরা, যাবৎ ইন্দ্র শক্তি অপ্রতিহত। শরীর যখন সুস্থ রয়েছে, ইন্দ্র শক্তি ইন্দ্ররা যখন সক্রিয়, তখনই আমাকে সাধনা করতে হবে। যাবৎ আয়ু সমীপ, যাবৎ যাবৎ আয়ু ও মৃত্যু সমীপ ন অস্তি। মৃত্যু যতক্ষণ পর্যন্ত কাছে আসছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ু আছে ততক্ষণ আমাকে সেইটাই আমাকে সাধনা করতে হবে। তাই আমি অপেক্ষা করলাম যে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত, তা করলে হবে না। আমাকে অল্প বয়স থেকে, যখনই আমার জ্ঞান যে হয়েছে তখন থেকে আমাকে সাধনা করতে হবে, সাধনার পথে চলতে হবে। তাহলে আমি আমার যে এই যে সময়, যে স্বল্প সময় নিয়ে, যে পরিমিত সময় নিয়ে আমি যে এসছি, সেই সময়ের সদ ব্যবহার হবে, সময়ের सद उपयोग হবে। এটা ঠিক कि इस जन्म में अगर मोक्ष मुक्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो कुछ परसेंटेज तो 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर तो हम जुटा कर तो रखेंगे ना। फिर नेक्स्ट ईयर में हमारा साधना का जो ऐसा परिवेश मिलेगा जहाँ की बाकी जो 20 नंबर बाकी है वो हम नेक्स्ट लाइफ में अपना जुटा कर हम अपना मोक्ष मुक्ति 100 नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन ये जिंदगी का हर पल, हर वक्त हमको हमारा किसके लिए, धर्म के लिए, मोक्ष के लिए, हमें परमार्थ के लिए हमें व्यतीत देना है ज़्यादा। और बाकी हमारा काम और अर्थ ये हम प्रारब्ध का ऊपर छोड़ देना चाहिए, कर्मफल का ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको लिए हमको एनर्जी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में অবশেষে এইটুকুই বলবো, এই আমরা প্রতিটি মুহূর্ত ধর্ম সাধনার জন্য যাতে অতিবাহিত করতে পারি, সেই সৎ বুদ্ধি, সেই সৎ ভাবনা परम पुरुष हमारे दिन जैसे हर पल, हर मुहूर्त हम साधना के लिए उपयोग कर पाए। परम पुरुष की भावना जो हमारे जिंदगी का जिंदगी है, जिनका इच्छा से, जिनका कृपा से हमारी जिंदगी चल रही है, उनके लिए हम हर पल, हर वक्त दे पाए। ये सद्बुद्धि, ये मनोभाव परम पुरुष हमें दें। ये प्रार्थना करते हुए और
सब स्वस्थवान रहे, सुस्वस्थ रहे, यही कामना करके यही हम शेष करते हैं। सबाई के नमस्कार। परमपिता बाबा की